جی نیکسٹ کال دیجیے. محمد اعجاز گوٹلال سے. جنید بھائی 2 دن سے نا سخت بخار ہے، جسم ایسے ٹوٹ رہا ہے جیسے کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہو. حضور والا دعا بھی فرما دیں صحت یابی کے لیے، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اعجاز نام آپ نے بتایا نا. اعجاز بھائی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں بھائی، انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے بعض اوقات موسمی امراض آ جاتے ہیں، موسمی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، علاج بھی کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں، اگر ہمت ہے آپ کے اندر، آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بخار آپ کا اتر جائے گا. اور چلیں آپ کا نام بھی میں نے نوٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے ہم کارڈ کا عمل بھی کروائیں گے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اور آپ کی اس بیماری کو، اس تکلیف کو گناہوں کا کفارہ بنائیں اور درجات کی بلندی کا سبب. نیکسٹ کال دیجیے گا. ہاں جی، میں محمد حنیف بول رہا ہوں لاہور سے. میں نے استخارہ کرانا تھا کہ میرا ماشاءاللہ پہلے 2 اچھے تھے، کم سے دونوں بگے، میرا کام بھی اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ حد سے زیادہ. میرا نام محمد حنیف ہے، میری والدہ کا نام شیما بی ہے. حنیف نام آپ نے بتایا نا، کام بتا رہے ہیں کہ ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام ویدن ہے. ان کے اردو میں پتری ہے اور اردو میں ورم بھی ہے. اس کا استخارہ بھی کر کے فرماتے کیا مسائل ہے، کیا وجوہات ہے، اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نا اپنی مشن کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام نبیلہ اعجاز ہے اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ پروین ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 1/1/1990. پلیز استخارہ کر کے بتا دیجیے گا کوئی روحانی ایشو آ رہے ہیں یا نارملی کوئی ویسے مسئلہ ہے. جی انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا بیٹا ہے غلام مشتبہ، جس کی عمر 17 سال ہے. اس کے سر میں درد رہتا ہے اور کوئی مہربانی کر کے وظیفہ بتا دیں. سر میں درد انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی. نیکسٹ کال دیجیے گا. نسیم اختر زوجہ کا نام ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے مقصود بھی. تو اس کو نا بس نیند نہیں آتی اور سر میں درد رہتا ہے، اس کو ختم نہیں ہو رہا. جی اگلی کال دیجیے گا. یہ پوچھنا تھا کہ میرا نا اپنا ذاتی کاروبار ہے، اس میں میرا دل نہیں لگتا بالکل بھی کام کرنے کو، تو اس کے لیے کوئی بتا دیں. کام میں دل نہیں لگتا، نام انہوں نے نہیں بتایا نا. چلیں آپ کو وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کام میں دل لگنے کے حوالے سے. نیکسٹ کال دیجیے. مسئلہ ہے گھر کے مسئلے جھگڑا رہ ویندے، کاروبار دے والے نال پیسہ آندے صحیح استعمال نہیں تھیندا، ٹینشن رہ ویندی ہے. اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. اور استخارے آپ فرما لیجیے حسین بھائی. کافی ساری کالز بھی تھیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، غلام مجتبہ نام آپ نے بتایا تھا، کہ سر میں درد رہتا ہے. اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو تو دیکھیں سورۃ الناس کا ایک وظیفہ ہے، قرآن پاک کی جو سب سے آخری سورت ہے سورۃ الناس. یہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہے نا تو اس پر آپ دم کر دیں. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار سورۃ الناس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں. پھر اس سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، یا تو ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور اگر بالفرض ٹھیک نہ ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 ٹائمز 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیں، یہ تو وظیفہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر بچے پر دم کرنا ہے. اگر بچے کو مستقل سر میں درد رہ رہا ہو نا تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کریں. اس کی بہت ساری دماغی کمزوری بعض اوقات وجہ ہوتی ہے، ذہنی کمزوری، اسی طرح بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی مستقل سر میں درد رہتا ہے. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات سر میں درد رہتا ہے. تو اور بھی مختلف طبی وجوہات ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر سے بھی مشورہ بھی کیجیے گا، اس کا علاج بھی کروائیں، روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ ہو. الحمدللہ عز و جل یہ بیماری دور ہو جائے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے کوئی عمل میرے لیے بتائیں. دیکھیں کام میں اگر کسی کا دل نہ لگتا، تو کام جائز ہونا چاہیے. جائز کام میں دل نہ لگے تو پھر یہ وظیفہ پڑھا کریں 100 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، گھر میں آپ نے کہا کہ تھوڑی کشیدگی والا ماحول ہے، جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے اور اس طرح کی کیفیت ہے. اللہ پاک آپ کے بھی گھر کو اور ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. اور ظاہری معاملات بھی دیکھیں وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات پر بھی غور کریں، اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ جو مسائل حل ہو سکتے ہیں ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور آپ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھا کریں یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. انشاءاللہ الکریم گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، گھر میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا. اور جو گھر کے جو افراد ہیں نا، جو اہل خانہ ہیں، تو ان کے درمیان آپس میں الحمدللہ عز و جل یہ محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ
इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। बढ़ेंगे नाज़रीन, अब हम आपके इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों पर अपना ख़ास फजल फरमाए। सबसे पहले मोहम्मद हनीफ़ भाई थे, इनका इस्तिखारा किया है। कहते हैं कि काम वगैरह के कुछ मसाइल हैं, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला करे। इस्तिखारे में जो है वो वक्ती आजमाइश है। हनीफ़ भाई, आपको एक वजीफ़ा और कुछ एक एहतियातें आपको अर्ज़ करता हूँ। सबसे फ़र्स्ट तो ये कि नमाज फ़जर पाबंदी से अदा, पाँचों ही नमाज़ें पढ़ा करें, नमाज फ़जर भी पढ़ें। नमाज फ़जर पढ़ने के बाद जो है आपने करना ये है कि हाथों को, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद हाथों को यूँ बुलंद करें, आसमान की तरफ हथेलियों को करें और 10 मरतबा या बासितू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिफती नाम या बासितू पढ़ कर जो है हाथों को चेहरे पर फेर लीजिए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से काम में कैसी भी रुकावट हो, बंदिश हो या अगर कोई भी मसला होगा तो इसकी बरकत से मामला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद कोशिश करा करें कि इशराक व चाश्त की नमाज भी अदा करें, तो इंशाअल्लाह इसकी आपको बरकतें नसीब होंगी। इसके बाद एक हमारी भाई थे, इन्होंने अपनी वालदा के हवाले से इस्तिखारा करवाया था, गुर्दों का मामला था। अल्लाह पाक इनको शिफाए कामिला सेहत नाफिया अता फरमाए। इस्तिखारे में जो है बीमारी का इशारा है। गुर्दों से मुताल्लिक एक बेहतरीन वजीफ़ा ये है, समात कीजिए कि आपने सबसे पहले तो बारिश का पानी होना चाहिए, बारिश का पानी ले लीजिए, उस पर आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है सूरे अलम नशराह 11 मरतबा पढ़नी है, पढ़कर पानी में दम कर दें। अब ये पानी को आप महफूज करें और पूरे दिन में आपने 4 मरतबा ये पानी को पीना है। हर मरतबा पीने से पहले जो है 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दम करके अब ये पानी पीजिए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुर्दों का कैसा ही मसला हुआ, पथरी का मसला होगा, तो इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। नेक्स्ट से हमारे वसीम अख्तर भाई थे, उन्होंने अपने किसी अजीज़ का इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारे में जो है नज़र बद का इशारा है, नींद नहीं आती और दीगर बेचैनी परेशानी के मामला बताए थे। बेहतरीन वजीफ़ा नज़र बद दूर करने के लिए अगर हो तो ख़त्म करने के लिए, और इस पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह नज़र लगेगी भी नहीं, वो ये है कि सूरे कलम की सेकंड लास्ट आयत जो है ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से नज़र होगी तो ख़त्म हो जाएगी और लगेगी भी नहीं, और नींद अच्छी आए, पुरसुकून नींद आए। तो उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि रात को सोने से कबल जो है 11 मरतबा 11 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें। फिर उसके बाद कसरत के साथ जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु इसका विर्द करते रहें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से नींद भी पुरसुकून हो जाएगी और आफियत और आसानी नसीब होगी। जी जुनैद भाई। माशाअल्लाह, इस्तिखारों के जवाबात भी हो चुके हैं, मैसेजेस काफ़ी सारे हैं इस्तिखारों के हवाले से। चंद एक मैसेज मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। ये एक मैसेज आया है, हमारे मोहम्मद शहबाज भाई हैं, इन्होंने कहा है कि वालिदा का नाम रज़िया बीबी है, कारोबार सही नहीं चल रहा, जो भी रिश्ता देखने आता है पसंद कर जाता है, बाद में हाँ ना का जवाब नहीं देता। इस हवाले से इस्तिखारा भी फरमा दें और कोई रूहानी इलाज हो तो वो भी इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, मैंने अपने भांजे का इस्तिखारा करवाना है, बहुत ज़्यादा ज़िद भी करता है, बात भी नहीं मानता, रोता रहता है। उसका नाम सालिक हुसैन और वालिदा का नाम सबा है। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, मोहम्मद इब्राहिम, वालिदा का नाम है शबाना कोसर, पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी, आजकल दुकान सही नहीं चल रही, रूहानी इलाज भी बताएं, इस्तिखारा भी कर दें और कारोबार की बरकत के लिए कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि मेरा इस्तिखारा कर दे, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, शाइस्ता नाम है, वालिदा का नाम मुसर्रत है, इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारा करवाते हैं, वज़ाइफ भी आपको बताएंगे, बीमारी के हिफाजत का, ये पित्ते की पथरी का रूहानी इलाज बता दीजिए। चलो वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, आपके इस्तिखारे हो रहे हैं। अगर अल्लाह न करे किसी के पित्ते में पथरी हो या मसाले में पथरी हो तो 46 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु ये आप एक सादे से कागज़ पर लिख लें। लिखने के बाद फिर वो कागज़ पानी की बोतल में डालकर, यानी वो तावीज़ पानी की बोतल में डालकर, वो पानी जिसके पित्ते में पथरी हो ना तो अब उस शख्स को पिलाएं, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक की रहमत से ये पथरी निकल जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि पेपर्स का रिज़ल्ट अच्छा आने का कोई वजीफ़ा बताएं। जैसी कोशिश, जैसी मेहनत की होगी तो फिर नतीजा वैसा ही आएगा। अच्छी मेहनत की होगी, अच्छी कोशिश की होगी तो नतीजा भी अच्छा आएगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। बहरहाल मेहनत भी करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है ये लोग होते हैं इस तरह का ज़हन रखते हैं कि मेहनत करें ना, पूरा साल पढ़े ना और बोलें कि अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, मेहनत भी करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। वजीफ़ा चलो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, अब आपने जो इम्तिहानात दिए, अब आप चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, तो जब तक आपका रिज़ल्ट ना आए ना, रिज़ल्ट आने तक आपने हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ये आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक की रहमत से अच्छे नंबरों से कामयाबी नसीब होगी, रिज़ल्ट अच्छा आएगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। तो चलें शामिल करेंगे नाज़रीन, अब हम आपके इस्तिखारों के जवाबात भी इरशाद फरमाएं। शहबाज भाई हमारे हैं, कारोबारी मामलात भी इन्होंने बताए थे अपने, और रिश्ते वगैरह के मामलात भी बताया था। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला करे। इस्तिखारे में जो है आजमाइश है, रिश्ते के हवाले से बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि 41 टाइम 41 मरतबा जो है इन्होंने सूरह इखलास रात को सोने से कबल पढ़नी है और 90 डेज़ 90 दिन पढ़ना है, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अच्छा रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। 90 दिन यानी इसका मतलब हो गया 3 महीने का आपने ये अमल बताया है, 3 महीने बिलफल। अगर जैसे नागा हो गया, अब क्या करें भाई?
नागा हो गया, वैसे हर वजीफे का मामला यही होता है कि इसको छोड़ना नहीं होता, अगर बीच में आप गैप कर रहे हैं तो फिर वो दोबारा से इसको स्टार्ट करना होगा। तो पढ़े इंशाल्लाह, इसकी आपको बरकतें नसीब होंगी। और 90 दिन में बिल फर्ज, यही अर्ज कर रहा हूँ 90 डेज हैं, लेकिन वजीफा बड़ा शानदार है और अमल करेंगे तो असर भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस दौरान अगर जैसे भाई बात पक्की हो जाती है, मंगनी हो गई, कहीं रिश्ता तय हो गया, मिसाल के तौर पर जी। भाई वजीफा पढ़ना शुरू किया, 1 महीने में काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता तय हो गया, फिर भी क्या करें? 90 दिन जो है कंप्लीट करें, 90 दिन मुकम्मल करें, शादी हो भी जाए तब भी शादी तक इंशाल्लाह इसको करें। तो ये कि 90 दिन इसके तादाद भी पूरी करनी है और डेज भी पूरे करने। अब इसमें देखिए यहाँ पर अब थोड़ी सी मैं एक एहतियात ये भी अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन को, इस्लामी बहनें जब इस वजीफ़े पर अमल करें ना, आप चूँकि ये 90 दिन का ये वजीफ़ा है, तो देखें जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है, उन दिनों में सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ ये कुल ये ना पढ़ें, बल्कि हुवल्लाहु अहद से इस वजीफ़े को पढ़ें और इस वजीफ़े को बिला नियत कुरान बनियत हम्द सना इस वजीफ़े को पढ़ा जाए इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह की रहमत से जिन इस्लामी बहनों के भी रिश्तों में रुकावट हैं, वो भी इस एहतियात के साथ ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम उनका मसला भी हल हो जाएगा, नेक्स्ट वाले रिश्ते नसीब होंगे इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट हमारे मदनी मुन्ना था, किसी अजीज़ ने इनका इस्तिखारा करवाया था, ज़िद करते हैं, इनका इस्तिखारा किया है। ज़िद इस्तिखारे में जो है वो नज़र बद का इशारा है, नज़र से हिफाजत के लिए या नज़र लगी हो उसको दूर करने के लिए बेहतरीन वजीफा स्पेशली बच्चों के लिए वो ये है कि इनको आप फर्स्ट टाइम 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सबसे पहली दफ़ा पढ़कर इनके सीधे गाल पर दम करें, दूसरी दफ़ा पढ़कर जो उल्टे गाल पर दम करें, लास्ट तीसरी दफ़ा पढ़कर इनकी पेशानी पर दम करें, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से नज़र दूर हो जाएगी। और एक और वजीफा की जो ज़िद्दें करते हैं ये पुरसुकून हो जाएं, अच्छे हो जाएं, फरमाबरदार हो जाएं, वो ये है कि जब ये सो रहे हों तो इनके सिरहाने खड़े होकर 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से इनका मामला हल हो जाएगा। नेक्स्ट से हमारे इब्राहिम भाई काम का अपना इन्होंने मसला शेयर किया था, इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में जो है वक्ती आजमाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए, कारोबार चमकाने के लिए, रिस्क में बरकत के लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि नमाज फजर की फ़र्ज और सुन्नतों के बीच में जो है या रज़्ज़ाक़ु 550 मरतबा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु 550 मरतबा 41 दिनों तक पढ़ें, इंशाल्लाह इसकी आपको बेशुमार बरकतें मिलेंगी। एक थे हमारे कॉलर शाहिस्ता, इनका इस्तिखारा मैसेज आया था, इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में जो है बीमारी का इशारा है, बीमारी के लिए बेहतरीन वजीफ़ा यह है कि 111 मरतबा जो है या सलामों पढ़ कर ये अपने ऊपर दम कर लिया करें। और इनको और दीगर हमारे नाज़रीन को एक रिक्वेस्ट भी है कि आप कोशिश करें कि हमारे तावीज़ात के स्टॉल पर आकर रुजू करें, रब्ता करें, आप अपने मुताल्लिका मर्ज़ या परेशानी के लिए तावीज़ लें, तो इंशाल्लाह इसकी आपको बेशुमार बरकतें नसीब होंगी माशाअल्लाह। क्योंकि यहाँ तो इस प्रोग्राम में जाहिर सी बात है वज़ाइफ ही सिर्फ बताए जाते हैं, मशवरा आपको दे दिया जाता है, रूहानी इलाज आपको बता दिया जाता है, बाकायदा पूरा इसका एक इलाज होता है बीमारियों का, मसाइल के हल के लिए। अब अल्लाह न करे किसी के साथ जादू जिन्नात या अमलियात का मामला हो तो इसका बाकायदा मुकम्मल एक इलाज होता है, वो करवाएं आप, ताबीदात अत्तारिया हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से बड़े इसके फ़वाइद हैं, कई बरकतें, कई बहारें तो हम आपको दिखाते भी रहते हैं वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में कि ताबीदात अत्तारिया की बरकत से जिनको फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिनके मसाइल हल हुए हैं, जिनकी परेशानियाँ दूर हुई हैं, आकर बताते हैं माशाअल्लाह लोग अपने। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए बढ़ेंगे मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, कॉल चलाइएगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़हुरुल हसन गिलानी है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। मेरी बहन की कानों की समात कम है, काफी जगह से इलाज करवाया है, फिर भी आराम नहीं आया। इसका नाम महनूर फातिमा है, अम्मी का नाम फहीम अख्तर है। अल्लाह पाक आपकी बहन को शिफा अता फरमाए, क़ुव्वत समाअत अल्लाह करे तेज़ हो जाए, जो भी रुकावटें हैं, जो भी तकलीफ़ है अल्लाह पाक दूर फरमाए। समाअत तेज़ करने का रूहानी इलाज चलो मैं अर्ज़ कर देता। अच्छा, समाअत और सुनने की ताकत तेज़ हो जाए और बहरापन अगर अल्लाह न करे किसी के साथ हो, या कान के जो भी जुमला अमराज हों, तो उसके लिए वजीफ़ा ये है कि या समीउ 21 मरतबा 21 टाइम्स अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर ये कानों पर दम करें। खुद पढ़कर अपने हाथों पर दम करके कानों पर फेर लें, या कोई दूसरा पढ़कर, जैसे आपने कॉल किया, आप ये वजीफ़ा पढ़कर आप बहन के कानों पे दम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी, समाअत तेज़ हो जाएगी। और कान का कोई भी मसला हुआ, बाद औक़ात ऐसा होता है ना पर्दा फट जाता है, पीप आना शुरू हो जाती है, या कान में तकलीफ़ है, दर्द है, तो सबके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। ये एक और मैसेज है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे कर्ज़ा नहीं उतर रहा, कोई वजीफ़ा बता दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। कर्ज़ा उतारने के लिए एक वजीफ़ा ये है कि आप पढ़ा करें कसरत के साथ, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये तो आपने कसरत के साथ पढ़ना है, सही। और दूसरी एक और दुआ है जो इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाई है, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ जो आपको अर्ज़ की है, ये दुआ मदनी पंसूरा में भी मौजूद है। तो ये वजीफ़ा आप पढ़ें हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा, और सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ें। कैसा ही और कितना ही कर्ज़ा क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब बनते चले जाएं।